this particular webinar. So let's start. So this is going to be fun because we are going to discuss a lot of things. So before we start, let me introduce you myself. Who am I and what I am doing here, right? And why you guys are in the seminar as of now, right? So we'll start with that. Then particularly we will move ahead with everything in detail. So no need to worry about that. So let's start, guys. So if I have to introduce you myself, then I am Ajay Kumar Gupta. I'm working as a staff data scientist, right, at Synopsys. Prior to that, I was working as a data scientist at Novartis, and parallelly, I have been working in many edtech designing their courses, right. So that would be my short intro. You can go through it, right, on my LinkedIn profile, right. Now, this particular webinar is, particularly organized by your college, right? And I am very thankful to them that they allowed me for this particular webinar. And one of the your student, right? One of your friend, that is Adib. Adib has actually done a lot of things in organizing this particular webinar, and you guys also should be thanking to him. But anyway, let's move ahead. So thanks to your BCA department who has taken this initiative. Now, this was just my short intro, and thank to everyone who was involved in particularly organizing this webinar. Now, moving ahead, right? So this webinar is particularly about how to become a data scientist, what is data science, some sort of a roadmap. So we are going to discuss about those things. So if I have to make the agenda of this webinar, then you can just say this, I will be first talking about what is data science, other related terminologies. Then I will be also talking about basics, how can you become a data scientist by following this particular 4 5 steps, right? Step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. I will be also talking about the resources. What resources should you go through it if you want to master any of this particular concept. And in the last, whoever are there, right, they will also be allowed to share their questions on their resume. If they want me to review your resume, please make sure that your resume is ready. I will review few of your resume, and also there will be Q&A round, question and answer session, so you can ask the question and answer as well. So this is going to be fun actually, because uh, everything. So this is like all the roadmap, whatever you need to become a data scientist as of now in 2024, this will be covered here, right? Right. So everyone excited? Everyone excited? Or everyone is feeling bored, or everyone is thinking just come to resume review. I am interested on only in that, right? Anyone is bored? Something like that? Excited, everyone? Okay, very good. So let's start, guys. Let's start. Before moving ahead, one more thing. This webinar is sponsored by careercraftpro.com. So you can just go through this website, this careercraftpro.com. And most important, in the end of the webinar, you guys are going to get some scholarship since you guys are students, right? So I will be talking about that also. Many people also have joined who are not students, right? But please, no, obviously you understand, since you will be enrolling in the course, I will be knowing who are the students and who are not the students. But that is the different thing. But let's start the discussion as of now. So guys, you might have heard about, data is a new oil, right? You have used this terminologies a lot. Data is new oil, राइट क्या है ये तेल राइट डेटा एक तेल है तो क्या ये तेल ऐसी तेल है जो कि आपको पेट्रोल पंप पे मिलती है राइट इट इज इट दैट ऑयल राइट सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेटा इज न्यू ऑयल क्या समझ में आता है एनीवन राइट राइट एनीवन कैन एनीवन आंसर दिस इफ समवन सेज यू वो डेटा इज न्यू ऑयल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डेटा इज न्यू ऑयल एनीवन कोई आंसर कर सकता है लेट मी सी ओके नो वन जल्दी बताओ राइट what do you understand by data is new oil? Any idea? Right. जब भी हम लोग बोलते हैं data is new oil, then what is the meaning of this? Right. Okay. So basically, I will talk about. Oh, just a second. Okay. Now,
So if I talk about data is new oil, right? It simply means before that, there's a definition of data. What is data? So let's talk about this, right? What is data? So you must be knowing that data is information. Data is a piece of information, right? Very good. This is a knowledge that you know. You must be guys knowing this. Data is a piece of information. But actually, this definition, if you know this much, is wrong, right? Whenever someone says data is a piece of information, that is not completely true, right? Because the complete definition of data would be data is a piece of information that can be stored and retrieved. That is the first understanding. So you understood that, okay? Data. What is the meaning of data, right? Now, right? Why we call data is a new oil? This is very, very important to know. There is a story behind it. I can talk about the story like, let's say 1 hour, 2 hour, but I'm not going to dive in that particular thing. But let me give you some little bit of information, right? In 2000, right? In 2000, right? In 2000, there was a bubble called as dot com bubble. Dot com bubble. Dot com bubble. How many of you have heard about this? Quickly, right? Anyone heard about this? ACC Allahabad? Any student? No one has heard about this. Right? Okay. So basically, what happened in this dot-com bubble, right? There was economic crisis. The reason being, many of the companies were using this dot-com domain, right? Having website and saying that कि okay मेरे पास website है, मैं internet पे हूँ, मेरी stock price इतनी बढ़ गई. Right? Something that sort of thing was happening. Now, आप सोच रहे होगे stock price यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ? नहीं, stock price is not important, but this dot-com is very important because in this era, after 2000, the internet was being adopted. Right? Fine, internet adopt हो रहा था, right? But there was one more thing. इंटरनेट तो अडॉप्ट हो रहा था बट मशीन लर्निंग की जो फर्स्ट डेफिनेशन आई थी या डेटा साइंस की जो फर्स्ट डेफिनेशन आई थी ये 1970s में ही आ गई थी. बट ऐसा क्यों हुआ कि इंटरनेट 2000 में है, 1970s में एमएल या डेटा साइंस है, बट एमएल वगैरह जो डेफिनेशंस है या एमएल वगैरह की जो पॉपुलैरिटी है अब भी आप देख रहे हो. व्हाई इट इज सो? हैव यू गाइस एवर थॉट अबाउट इट? बिकॉज ऑफ टू रीजंस. फर्स्ट, हमारी जो प्रोसेसर पावर है वो काफी इंक्रीज हो गई आफ्टर 2010. एंड सेकेंड, इंटरनेट जो यूज हो रही थी was very low in no numbers. Very rare people were using internet in 2020, sorry, 2002 to 2004. But after around 2015, right, many of the market, right, China, India आपको पता है कहानी जियो की, right? So they open up the market with affordable internet. और affordable internet के कारण you saw a lot of data, right? क्योंकि हर घर में फोन होने लगा, हर घर में इंटरनेट होने लगी. एंड इफ यू फाइंड, राइट, इंटरनेट, इफ देर इज इंटरनेट, ऑब्वियसली यदि ज्यादा इंटरनेट यूज हो रही है, देन देन द डेटा विल बी जनरेटेड. और यदि डेटा जनरेट हो रही है तो कुछ तो करना होगा ना भाई डेटा का. सो लेट से डेटा जनरेट हो रही है, देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा. व्हाट शुड बी डन? राइट, कुछ तो करना होगा. सोचो इसके बारे में. अब डेटा इज न्यू ऑयल बोलने से नहीं होता, अब सोचना पड़ेगा आपको कि डेटा का करना क्या है. फिर हमारे पास कुछ आया जिसको हम लोग पॉपुलरली बोलने लगे डेटा साइंस. और भी बहुत सारी चीजें हैं, एमएल, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, एनएलपी, सब पे आते हैं. बट पॉइंट ये है कि डेटा साइंस 2015 के बाद आपने सुनना चालू किया होगा. और भी बहुत सारी कहानियां हैं. 2017 में एक रिसर्च पेपर आई थी, फिर 2022 में चैट जीपीटी आया जो कि और भी पॉपुलर कर दिया. राइट, अब ये बोल रहे हो सर ये कहानी सुन के मैं क्या करूंगा? क्योंकि इसके पीछे एक थॉट प्रोसेस है. राइट, ये एमएल की जर्नी है, कंप्लीटली नहीं बताया मैंने, बट दिस इज स्मॉल अमाउंट ऑफ नो, थोड़ा सा एक डेटा साइंस का एमएल का जर्नी है. बट व्हाई, क्यों हम लोग जानना चाह रहे हैं? बिकॉज ऑफ द वन रीजन कि ये जर्नी खत्म नहीं होने वाली है. दिस इज नॉट गोइंग टू एंड, राइट? You will find
a mass, adoption of AI in day to day work. अब जब मास एडॉप्शन होगा एआई का इन डे टू डे वर्क, तो कौन सी टाइप ऑफ जॉब की ओपनिंग्स ज्यादा होंगी? एक्चुअली अभी ही है एक टारगेट के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में 2.5 सीआर डेटा साइंस की जॉब्स ओपनिंग्स अभी भी अवेलेबल है, जो कि फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। इंडिया का थोड़ा मार्केट खराब है, राइट। 2.5 करोड़ इज अ ह्यूज नंबर, राइट, राइट, राइट। इंडिया का मार्केट थोड़ा खराब है, यूएस का मार्केट खराब है, बट बहुत ज्यादा जगह पे छोटे छोटे स्टार्टअप्स में बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स हैं जो लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। और वन ऑफ द मेन मोटिवेशन, राइट, मेरा वन ऑफ द मेन मोटिवेशन यहाँ पे डेटा साइंस पढ़ाने का ये भी है कि देर आर लॉट ऑफ जॉब ओपनिंग्स इन इट, ताकि लोगों को मैं हेल्प कर सकूं, राइट। नाउ मूविंग अहेड, हमें ये पता चलेगा कि डेटा इज न्यू ऑयल क्यों बोलते हैं। बिकॉज डेटा बहुत जनरेट हो गई, डेटा बहुत जनरेट होने के कारण वेरी सिंपल हमें उसको यूज करना है। यूज करना है क्यों है? क्योंकि वी वांट टू यूज डेटा जस्ट टू मेक श्योर कि उससे कुछ बिजनेस आउटकम बढ़े, रेवेन्यू बढ़े। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। मूविंग अहेड, अब आप पूछोगे मुझसे कि सर बढ़िया यार, स्टोरी अच्छा सुना दिया, मजे आ गए, बट कहाँ कुछ प्रूफ करके दिखाओगे कि डेटा बहुत ज्यादा है? देखो, देयर इज अ स्लाइड हियर। इसकी रिसोर्स, ये सोर्स कहां से आई हुई है आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट इसका यदि 1/10 भी ट्रूथ माने, दैट इज अ ह्यूज नंबर। सी हियर, एवरी 60 seconds 4.3 million वीडियोज आर व्यूड। क्या है ये? दिस इज ऑल्सो अ डेटा, right? If you see every 60 seconds, 1.1 million swipes are there on Tinder. अब शर्माना मत, मुझे पता है आप लोग टिंडर पे हो, राइट, बट द पॉइंट इज देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, right, right. I have taken this from internet, right, right. So it's not that it should be 100% truth, right, but just google it out, simple google it out, how many jobs are there on of data science opening out there, what is the potential, you will understand the importance, right, right. And that's why गेटिंग इनटू डेटा साइंस इज इंपॉर्टेंट। बट आप ये सोचोगे सर ठीक है यार, डेटा साइंस में आ जाऊंगा, बहुत मेहनत लगेगी आने में, सो आई विल कम फॉर द डेटा साइंस जॉब, दैट इज कंप्लीटली फाइन। जस्ट अ सेकंड गाइस, आई गेस माय कैमरा इज नॉट ऑन। इज माय कैमरा ऑन नाउ गाइस, एवरीवन? इज इट माय कैमरा इज ऑन? ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, ठीक है, सो फाइन। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि हाँ, डेटा इज न्यू ऑयल एंड दैट्स द आइडिया। नाउ लेट्स मूव अहेड, डेटा इज न्यू ऑयल समझ लिया। आप ये भी बोलोगे कि सर मजे आ गए, डेटा सीख लिया, न्यू ऑयल है, बहुत बढ़िया, लाइफ झिंगा लाला, चलो अब डेटा साइंस सीख लेते हैं, जॉब मिल जाएगी, बढ़िया। बट क्या होता है ना, देयर इज अ डिमांड एंड सप्लाई का रूल। यदि सप्लाई ज्यादा है तो लोग डिमांड भी बहुत करेंगे, सिंपल सा फंडा है। सो इफ यू आर थिंकिंग इन अ सेम वे, देन बिलीव मी, देयर आर लॉट ऑफ पीपल थिंकिंग इन द सेम वे। सबको डेटा साइंस में आनी है फिर, right? Then what are the things that you should do so that you can get into data science industry? I will be talking about those things, right? I will also be talking about this कि रोड मैप क्या होना चाहिए विथ टाइम। मैं टाइम भी बताऊंगा एग्जैक्टली इतना टाइम इस पर्टिकुलर थिंग पे देना चाहिए, राइट, राइट। एंड वन फन फैक्ट, मैं ये भी कंफ्यूजन क्लियर करूंगा आप लोगों की कि व्हाट आर डिफरेंट एसोसिएटेड टर्मिनोलॉजीज। डेटा साइंस है, आपने एआई भी सुना होगा, मशीन लर्निंग भी सुना होगा, डेटा एनालिटिक्स भी सुना होगा, बिजनेस एनालिटिक्स भी सुना होगा, मशीन लर्निंग इंजीनियर सुना होगा, एनएलपी इंजीनियर सुना होगा, कंप्यूटर विजन इंजीनियर सुना होगा। ये सब क्या है? कहां से आता है ये नाम? ऐसा हुआ कि किसी दिन सोकर उठा आदिब और बोला कि चलो आज इसी में मन नहीं लग रहा, इलाहाबाद घूमते हैं। अच्छा, इलाहाबाद भी नहीं घूमना है क्योंकि बहुत ज्यादा घूम लिया मैंने, क्यों नहीं एक काम करते हैं, आज कुछ नया टर्मिनोलॉजी निकालते हैं। बस डेटा साइंस को उठाया, बिजनेस एनालिस्ट को उठाया, दोनों को क्लब कर दिया और डेटा एनालिस्ट बना दिया। ऐसा होता है क्या? नहीं, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, क्यों, राइट। सो टू अंडरस्टैंड दैट, मेरे पास एक स्लाइड है, दिस इज द स्लाइड। यहां पे ध्यान से देखोगे कि यहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, राइट। मैं इसको शायद फुल स्क्रीन कर सकता हूं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो थोड़ा सा गड़बड़ है, सो आई जस्ट सो यू, मैं इसको फुल, राइट,
स्लाइड मोड में ले आता हूं या रीडिंग मोड में ले आता हूं, डजेंट मैटर। स्लाइड शो, इज इट नॉट गुड? ओके, अब दिख रही होगी चीजें। सो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग। ये क्या है? व्हाट इज एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझाता हूं मैं, बहुत इजी है समझना। यार क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? सबसे पहले ये देख लो, इंटेलिजेंस वर्ड यूज हुआ है। क्या मतलब होता है इंटेलिजेंस का? एनीवन कैन यू आंसर दिस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस? जल्दी बताओ एवरीवन। देखो, जो ज्यादा एक्टिव होगा उसे स्कॉलरशिप भी मिलेगी लास्ट में। राइट, राइट, जल्दी से बताओ। एनीवन, व्हाट इज इंटेलिजेंस? राइट, आदर्श says बुद्धिमत्ता। वेरी गुड, वेरी गुड पॉइंट। इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धिमत्ता, राइट। और जब उस पे एक वर्ड ऐड कर दे आर्टिफिशियल, तब फिर क्या मतलब होता है उसका? राइट, वो बुद्धि जो नेचुरल ना हो। एवरीवन एग्रीज टू दिस? वो बुद्धि जो नेचुरल ना हो, दिस इज योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। इसमें तो कोई इफ एंड बिट्स नहीं होना चाहिए। और जो बुद्धि नेचुरल ना हो, राइट, वो बुद्धि कौन बनाएगा इस संसार में? उसको बनाने के लिए बस ह्यूमन बीइंग ही है, और कोई नहीं है। वेरी सिंपल। सो व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? राइट, इफ यू हैव टू डिफाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू कैन डिफाइन इन अ वेरी सिंपल वर्ड। आप सिंपली कह सकते हैं, वेरी इजी, राइट, राइट, राइट। सो द application which is intelligent, that's it। एप्लीकेशन विच इज इंटेलिजेंट, राइट। अब ये कुछ भी हो सकता है, राइट। एक रोबोट भी हो सकता है, ऑटोनोमस व्हीकल भी हो सकता है, एनीथिंग, एनीथिंग इट इज पॉसिबल, राइट, विच इज इंटेलिजेंट, राइट। नाउ बहुत बढ़िया, ये हमें पता चल गया, द एप्लीकेशन विच इज इंटेलिजेंट, राइट, दैट इज योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब एक्चुअली होता क्या है, इसको इंटेलिजेंस को बनाने के लिए क्या करेंगे? सो वी हैव डिफरेंट एल्गोरिदम्स। फर्स्ट वन इज मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग क्या होता है? टू लर्न द पैटर्न्स फ्रॉम द डेटा, राइट। नाउ व्हाट इज डीप लर्निंग? राइट, क्योंकि क्या होता है, जनरली मशीन लर्निंग के साथ साथ एक टर्मिनोलॉजीज भी आती है। सो लेट्स से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, दिस इज माय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो यहां पे मैंने बोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मशीन। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। अब इस मशीन को बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? कुछ तो एल्गोरिदम चाहिए। तो आता है पहला, दैट इज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, एमएल एल्गोरिदम्स। एमएल एल्गोरिदम क्या होता है? टू लर्न द पैटर्न फ्रॉम द डेटा एंड टू रेप्लिकेट द सेम थिंग इन फ्यूचर। सिंपल समझो यार, विराट कोहली है, 5 रन मारा, 10 रन मारा, 15 रन मारा, 20 रन मारा। यदि मैं पूछूं अगला मैच में क्या रन मारेगा, तो सभी कोई बोलोगे ये सर 5, 10, 15, 20, 25 ही मारेगा। तो क्या किया तुमने? क्या किया आपने? यू जस्ट सॉ द पैटर्न एंड यू जस्ट रोट 25, दैट्स इट, राइट। और यही है मशीन लर्निंग। चैलेंज है, प्रूफ कर दे कि ये नहीं है मशीन लर्निंग कोई। दिस इज एक्चुअली द मशीन लर्निंग, लर्निंग द पैटर्न फ्रॉम द डेटा। अब मशीन लर्निंग के अंदर एक टर्म है डीप लर्निंग। व्हाट इज डीप लर्निंग? राइट, डीप लर्निंग इज स्पेशलाइज्ड एमएल एल्गोरिदम दैट मिमिक्स द ह्यूमन ब्रेन। आप लोगों की बायोलॉजी टेस्ट करता हूं, जो हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है, फंडामेंटल यूनिट क्या है? व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट? राइट, न्यूरॉन इज द फंडामेंटल यूनिट, राइट। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर यदि याद होगा, कुछ ऐसा होता था, ये रहा साइनेप्स, ये हुआ न्यूक्लियस, ये होता डेंड्राइट, और ये कुछ कनेक्टिंग होता है, समथिंग लाइक दिस। क्लास 9th में ये पढ़ा होगा, राइट। सो ह्यूमन ब्रेन ऐसे मल्टीपल न्यूरॉन से बने होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होता है थ्रू डेंड्राइट्स, राइट। सिमिलरली डीप लर्निंग में जो पैटर्न लर्न करने का तरीका न्यूरॉन से होता है, right? And that's why we say that deep learning is a specialized algorithm जो कि मिमिक करता है ह्यूमन ब्रेन को। बहुत बढ़िया, नॉट अ प्रॉब्लम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ लिया, एमएल एल्गोरिथम समझ लिया, डीप लर्निंग समझ लिया। नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। आपने डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, एमएल इंजीनियर सारा कुछ सुना होगा, राइट। एनएलपी सुना होगा। एनएलपी क्या है? एनएलपी अगेन इज अ डिवीजन ऑफ डीप लर्निंग,
जहां पे टेक्स्ट डेटा से डील करते हैं। फिर होता है कंप्यूटर विजन, जहां पर की इमेज डेटा से डील करते हैं, उसको हम लोग कहेंगे कंप्यूटर विजन इंजीनियर। सो यदि मैं फिर से वापस लिखना चाहूं, राइट, एनएलपी, राइट, यदि मैं लिखना चाहूं तो क्या हो गया? फर्स्ट, मशीन लर्निंग, राइट, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करता है। डीप लर्निंग ये भी पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करता है यूजिंग न्यूरॉन्स, राइट, राइट ना। अगेन मूविंग अहेड, उसके बाद हमारे पास एनएलपी है जो कि टेक्स्ट डेटा से डील करता है, राइट। देन हमारे पास कंप्यूटर विजन है जो इमेज डेटा से डील करता है। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग, राइट नाउ। अब ये डेटा एनालिस्ट क्या होता है, बिजनेस एनालिस्ट क्या होता है, मशीन लर्निंग इंजीनियर क्या होता है, डेटा साइंटिस्ट क्या होता है, देन आपके बाद उसके बाद एनएलपी इंजीनियर क्या होता है, कंप्यूटर विजन इंजीनियर क्या होता है? बहुत सिंपल है। डेटा एनालिस्ट जो कि डेटा से इंसाइट्स निकाले, बिजनेस एनालिस्ट डेटा से इंसाइट्स निकाल करके बिजनेस में अप्लाई करके रेवेन्यू बढ़ाए। एमएलई जो मशीन लर्निंग इंजीनियर को प्रोडक्शन पे ले जाए, राइट। डेटा साइंटिस्ट क्या है? सो बेसिकली डेटा साइंटिस्ट इज अ ब्रॉडर डिवीजन, जो भी डेटा के साथ प्ले करता है, जो भी डेटा के साथ खेलता है, एनीवन प्लेइंग विद द डेटा इज द डेटा साइंटिस्ट। दैट्स इट, राइट, वेरी जल्दी डेफिनेशन। उसके बाद आता है एनएलपी जो टेक्स्ट डेटा से डील करे, कंप्यूटर विजन जो कि इमेज डेटा से डील करे। तो दिस इज द बिगर पिक्चर। क्यों लोग डेटा साइंस में आना चाहते हैं? क्योंकि रीजन है, बहुत सारी जॉब ऑप्शंस हैं। अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है, डेटा इंजीनियरिंग भी एक जॉब ऑप्शन है, बिजनेस इंटेलिजेंस इंजीनियर भी एक जॉब ऑप्शन है, राइट। बहुत ज्यादा जॉब ऑप्शंस है, राइट, एंड दैट्स व्हाई पीपल ट्राई टू कम हियर, राइट, ट्राई टू लर्न डेटा साइंस। नाउ वेरी गुड, समझ में आ गया, ये टर्मिनोलॉजीज देख लिए, डिटेल यहां पे मेरा लिखा हुआ है। बट एक्चुअली हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे? हाउ वी विल स्टार्ट, राइट? सीखना तो है, चलो समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, सीख लेंगे। डेटा साइंस सीखनी है, वी वांट टू स्टडी डेटा साइंस, राइट, राइट। अब डेटा साइंस सीखेंगे कैसे? हाउ वी विल लर्न डेटा साइंस, राइट। सीखने का एक ही तरीका होता है, करना, राइट। स्टार्ट डूइंग डेटा साइंस। बट अब करोगे कैसे? How you will be doing the data science? How? That's the question, right? So first step मैंने क्या किया है कि मल्टीपल स्टेप्स लिखे हुए हैं, राइट। स्टेप 1 बेसिक्स, स्टेप 2 मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, स्टेप 3 एमएल ऑप्स, स्टेप 4 डीप लर्निंग, स्टेप 5 एनएलपी। एक एक करके आई विल गो ahead with each of this and I will discuss everything, right? So सबसे पहला चीज, you should always start with the basics of data science, और वो क्या है? First, programming language, right? Right. You should learn programming language first in order to become a data scientist or in order to get into data science industry. Programming language क्या है? बीसीए से हो, एसीसी में हो, ईसीसी इतनी अच्छी कॉलेज है, राइट। मुझे नहीं लगता कि डेफिनेशन की जरूरत है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? इफ आई एम सेइंग समथिंग एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग समथिंग, व्हाई? बिकॉज यू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। उसी तरह यदि आपको कोई कमांड देना है मशीन्स को, राइट, 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 देन देयर शुड बी सम वे टू डू दैट, and that way is nothing but the programming language. So what is programming language? The set of instructions. अब programming language बहुत सारे हैं मार्केट में, राइट। सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बट डेटा साइंस के लिए दो पॉपुलर है, पाइथन एंड आर। बट अमॉन्ग दैट ऑल्सो पाइथन इज द मोस्ट पॉपुलर वन, राइट, एंड दैट्स व्हाई पीपल ट्राई टू लर्न पाइथन। इसका एग्जांपल मैं दिखा सकता हूं व्हाई इट इज सो पॉपुलर। जस्ट आप सर्च करो नंबर ऑफ लाइब्रेरीज इन पाइथन, जस्ट गिव अ स्मॉल सर्च, number of libraries in Python. Just give a small search. How many libraries are there? 1,37,000, right? इतनी लाइब्रेरी किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं है, right? Right. And that's what makes Python very popular, because it has a strong community base. First, second, it is very easy to use. Third, it has integration with almost every tool. डेटा साइंस के लिए यही माई बाप है, दैट्स इट, राइट। मूविंग अहेड, अब क्या होता है? डेटा साइंस में डेटा यूज होता है,
right? So you need to understand a little bit of mathematics and statistics behind data science. So fundamentals of statistics is also very important, right? Right. So what will be there in the statistics? यदि मैं उसकी बात करूं, स्टैटिस्टिक्स में क्या हो सकता है, राइट? सो पहले पाइथन, पाइथन में क्या क्या सीखोगे आप? पाइथन में सिंटेक्स सीखोगे, राइट? राइट, राइट। उसके बाद आप कॉन्सेप्ट सीखोगे, जैसे डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर। You will dive into deep into functions, right? Then you will also dive deep into, let's say, OOPS concept. These are important things. Then comes, right, python के बाद comes आता है, let's come to next thing, maths और statistics. इसमें आप सीखोगे descriptive statistics, inferential statistics. ये सब terminologies थोड़े से alien लग रहे होंगे, बट चूंकि आई एम कमिंग फ्रॉम मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग बैकग्राउंड, अभी तक 35 से 40 बैच ले चुका हूं, आई फाइंड इट सो इजी टू एक्सप्लेन, राइट? मुझे पता है that this is being very hard for you guys to make out some sense out of this particular terminologies, but don't worry about that, right? So ये पढ़ना होगा आपको, and then application of statistics, right? एंड देन कम्स टूल्स। अब क्या होता है ना कि डेटा से रिलेटेड जितनी टूल्स हैं, आपने सिक्वल डेटाबेस सुना होगा, राइट? डेटाबेस, one of the type of database is SQL, structured query language, and in that MySQL is the most popular one. तो एक डेटाबेस की इंफॉर्मेशन जरूरी है, राइट? अगेन आपको लाइब्रेरीज आनी चाहिए, pandas, numpy, all of this, right? There are multiple libraries that you should know. Also you should know about some visualization tool like Power BI. Let's say these are the tools that you should know, right? So these are few basics that you should be knowing. नाउ आप बोलोगे कि यार ये चीज, इतनी चीजें हैं, कितनी टाइम लगेगी, राइट? तो सी, दिस इज द बेसिक्स आई वुड आइडियली गिव, राइट, एटलीस्ट 3 months टू इट, राइट? और बहुत ज्यादा एकदम भागम भाग स्थिति में जानी है तो एटलीस्ट 2.5 से 3 महीने तो पक्के लगेंगे। 2 से 2.5 महीने मान लो कि बहुत इंटेलिजेंट हो आप, तो 2 से 2.5 महीने, तो दैट वुड बी द अंडरस्टैंडिंग। कौन कौन से रिसोर्सेज से कवर करने हैं, आई विल टॉक अबाउट दैट एज वेल, राइट? नो नीड टू वरी अबाउट दैट। नाउ मूविंग अहेड, उसका सेकेंड स्टेप्स आता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है? टू लर्न द पैटर्न फ्रॉम द डेटा। अब मशीन लर्निंग के पैटर्न्स को लर्न करने के लिए डिफरेंट स्टाइल्स हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, बहुत सारे एल्गोरिथम्स है, लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, राइट, टाइम सीरीज, ऑल ऑफ दिस एल्गोरिथम्स, राइट? अब एल्गोरिथम्स तो सीख लोगे, नॉट अ प्रॉब्लम, राइट? चलो एल्गोरिथम सीख लिया मैंने, उसको अप्लाई करने का क्या क्या तरीका हो सकता है? हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग होता है, राइट? मशीन लर्निंग मॉडल जो आपने बनाया, क्या वो सही है, राइट? इज इट बस बनाने के लिए बना दिया? यूज हो सकता है इंडस्ट्री में? some sort of that thing also requires here. Then moving ahead, implementation, this is very important. एक लर्नर से बात हो रही थी, सर मैंने आपका ये कोर्स देख लिया, 6 महीने से देख रहा हूं, मुझे सब समझ में आती है, जब आप पढ़ाते हो तो मजा आ जाता है, राइट? बढ़िया। मैंने कहा वेरी गुड, थैंक यू। मुझे लगा मैसेज वहीं बंद कर देगा, फिर वापस से मैसेज करता, बट सर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। लाइक क्यों भाई, क्यों कॉन्फिडेंट नहीं हो? शादी करने थोड़ी जा रहे हो कि घर वाले उनके देखने आ रहे हैं, बस कॉन्फिडेंस की कमी हो गई? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तुमने पढ़ाई की है, टाइम दिए, व्हाई आर यू नॉट कॉन्फिडेंट? सामने से जवाब आता है, सर पता नहीं। देन आई आस्क्ड अ सिंपल क्वेश्चन, कितने डेटा प्रोजेक्ट पे तुमने काम किया? आंसर इज नील बटा सन्नाटा। तभी मैंने बोला उसे, इसलिए तुम्हें नहीं आता, बिकॉज whenever you want to do some implementation, you have to work on a real world data science project, real world data science, data, right? That's it. There's no any if and buts to it, right? The best way to learn anything is to do the thing. That's the thing. So machine learning के algorithms पहले सीखो, see optimization techniques, and then go to the implementation. Again, this will take at least 1 month, right? This is 1 month list बोला मैंने। यदि आप स्लो लर्नर हो तो कम से कम 2 महीने, सो 3 महीने बेसिक्स पे, यदि ये स्ट्रांग हो गया
देन 2 महीने मशीन लर्निंग, 3 to 5 मंथ्स यहां तक आप आ जाओगे। और यहां आने के बाद इंप्लीमेंटेशन में कम से कम 2 प्रोजेक्ट तो कर ही लो। इफ यू डू 2 प्रोजेक्ट्स इट विल बी वेरी वेरी गुड। नाउ कमिंग अहेड, बढ़िया, मशीन लर्निंग समझ में आ गई। नेक्स्ट स्टेप इज एमएलऑप्स, राइट, एमएलऑप्स। सो यहां पे आप देखोगे दिस नेक्स्ट स्टेप इज एमएलऑप्स। ये एमएलऑप्स क्या है? राइट, राइट, एमएलऑप्स है क्या? एनीवन हैज एनी आइडिया? राइट, डेवऑप्स सुना होगा, बीसीएस से हो आप लोग। व्हाट इज डेवऑप्स? एनी आइडिया, एनीवन? ओके, नो वन इज कमेंटिंग, नो प्रॉब्लम। एमएलऑप्स क्या होता है? चलो मशीन लर्निंग मॉडल बना दिया, ऐसे ऐसे समझो कि घर बनाया हमने, राइट, बहुत बढ़िया, राइट, घर तो बना दिया हमने, राइट, मजा आ गया। बट क्या घर बनाने के बाद वो रहने लायक तुरंत होता है? नहीं भाई, वो रहने लायक नहीं होता है। क्या करते हो आप? घर बनाने के बाद इंटीरियर करवाओगे, फिर पूजा पाठ करवाओगे, राइट, जो भी पद्धति जैसे भी करवाना है वो करवाओगे, एंड देन ओनली एक शुभ मुहूर्त में आप एंट्री लोगे घर की। उसी तरह मशीन लर्निंग मॉडल तो बना दिया, लेकिन यूज करने के लिए क्या? पहला क्वेश्चन, क्या वो स्केल हो रहा है? क्या वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड है? राइट, कैसे स्ट्रक्चर्ड है? पहले ट्रेनिंग हो रहा है भी या नहीं? राइट, क्या क्या फीचर्स है? राइट, डिप्लॉय कहां करना है? सो MLOps मीन्स मशीन लर्निंग ऑपरेशन। सो ये वाली MLOps जो है डिवीजन डेटा साइंस की, अभी रिसेंटली 3 4 साल 5 साल से बहुत पॉपुलर हो रहा है। डिप्लॉय करना तो कहां पे करना है? क्लाउड में। कौन सा क्लाउड यूज करें? AWS यूज करें, एज़्योर करें? कौन सा बेनिफिशियल है मेरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए? ठीक है, रिजल्ट आ गया, कहां विजुलाइज करें? वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप पूछोगे सर अजय, ये एमएलऑप्स यदि पढ़ लेंगे तो जॉब लग जाएगी क्या? एक्चुअली दिस इज द डिफरेंशिएटर फैक्टर। यहां तक कोई भी कर लेगा, और इनफैक्ट कर भी लोगे, जरूरत भी नहीं है मेरी, राइट, आई विल गिव यू रिसोर्स, करना चालू कर दो। बट प्रॉब्लम ये आती है कि यदि आप कोई कोर्स नहीं लेते हो तो आप वो स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई नहीं होती, और जो पढ़ते हो वो सैलो लेवल पे, ऊपर ऊपर लेवल से पढ़ते हो, डेप्थ में नहीं पढ़ पाते हो। बट यस, पढ़ सकते हो आप, राइट। MLOps, दिस इज समथिंग कम्स फ्रॉम द इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। मैं 6 साल से इंडस्ट्री में हूं, तो आई कैन कमेंट ऑन दिस कि ये ऐसे नहीं आएगा। आज सुबह उठे, राइट, ऐसे ऐसे बाल किया, ब्रश किए, बैठ गए, MLOps सीख लिया, ऐसा नहीं हो पाएगा इसमें, राइट। You need to have more practice. You need to broaden your knowledge, right? And that's the MLOps. अब MLOps में बहुत सारे tools होते हैं। आपको Git सीखना होगा, Jenkins सीखनी होगी, AWS सीखना होगा, right? To make one end-to-end project. Now, moving ahead, यदि यहां तक आपने कर लिया, तो डेटा साइंस के 80% जॉब ओपनिंग आपके लिए ओपन होगी। अब ये करने में कितना लगेगा? एटलीस्ट 1 महीने। सो 3 + 2 + 1, 6 महीने यहां तक आप पहुंच जाओगे। तो आप देख रहे हो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, धीरे 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 6 महीने। हड़बड़ाना नहीं है लाइफ में। लाइफ में जो हड़बड़ाते हैं वो कहीं नहीं पहुंच पाते। वेरी सिंपल, राइट। नाउ मूविंग अहेड, राइट, डीप लर्निंग एंड स्पेशलाइजेशन। अब क्या होता है ना, ये मशीन लर्निंग यहां तक के जो है, यहां तक की चीजें सब लोग कर ले रहे थे, बहुत बढ़िया। फिर एक बला आ गई लाइफ में जिसको हम लोग चैट जीपीटी बोलते हैं, राइट। ये बला चैट जीपीटी की मार्केट ऐसे बदल दी लास्ट 2 साल में कि अब मशीन लर्निंग के बियॉन्ड भी आपको चीजें सीखनी होगी, एंड उसमें से एक चीज है दैट इज डीप लर्निंग, जो आपको सीखनी पड़ेगी, राइट। डीप लर्निंग क्या है? मैंने अभी आपको बताया, वो सारी मशीन लर्निंग की स्पेशलाइज्ड एल्गोरिदम जो कि ह्यूमन ब्रेन जैसे काम करती है। अब इसके डिफरेंट कैटेगरीज हैं। पहले हम लोग एएनएन से स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद मूविंग अहेड हम लोग सीएनएन पे जा सकते हैं, देन हम लोग आरएनएन पे जा सकते हैं। आरएनएन जो सीक्वेंशियल डेटा से डील करता है, सीएनएन जो इमेज डेटा से डील करता है। उसके बाद हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसफॉर्मर्स पे जा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्टिकुलर एल्गोरिदम्स पे जा सकते हैं। सो अगेन एल्गोरिदम्स, पहला एल्गोरिदम्स वाला पार्ट हो गया।
पहला डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स में एनएन से स्टार्ट करोगे, सीएनएन जाओगे, देन वी विल मूव अहेड टू सीक्वेंशियल मॉडल्स, आरएनएन, क्या डिसएडवांटेज आरएनएन का, फिर उसके बाद आरएनएन का, फिर उसके बाद हम लोग ट्रांसफॉर्मर्स पे जाएंगे। अब इसमें भी देयर आर लॉट ऑफ टूल्स, जिस तरह पांडास नंपाई मशीन लर्निंग में काम आएगा, साइकिट मशीन लर्निंग में काम आएगा, यहां पर भी पांडास नंपाई और डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज काम आएंगे, जैसे कि पाइटॉर्च, जैसे कि केरास, राइट राइट। उसके बाद यहां पे आप फिर से प्रोजेक्ट कर लोगे, एंड देन यदि डीप लर्निंग के एल्गोरिथम्स करके प्रोजेक्ट कर लिया, देन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है एनएलपी या कंप्यूटर विजन का स्पेशलाइजेशन, राइट। आई लव एनएलपी, सो एनएलपी में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है, कंप्यूटर विजन में थोड़ा कम। बट इफ यू वांट टू गो अहेड टेक एनी स्पेशलाइजेशन, एनएलपी टेक्सचुअल डेटा से डील करता है, कंप्यूटर विजन वेरी सिंपल इमेज डेटा से डील करता है। एंड दिस डेज यदि एनएलपी का आपने लिया स्पेशलाइजेशन, यदि आप लोगे, देन यू विल बी गोइंग टुवर्ड्स एलएलएम्स एंड जेएनएआई, जो कि चैट जीपीटी आजकल बहुत फेमस है। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग, राइट। सो ये डीप लर्निंग एंड स्पेशलाइजेशन को कवर करने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। सो 3 2 5 3 8 1 9, सो 3 2 5 1 6 3 9, 9 महीने का ये करिकुलम है, राइट, जो आपको फॉलो करनी चाहिए। कहीं से भी पढ़ो, यूट्यूब से करो, कहीं से भी करो, इट डजंट मैटर, बट दिस इज द वे यू शुड, इन दिस सीक्वेंस यू शुड स्टार्ट डूइंग सो। नाउ मूविंग अहेड, रिसोर्सेस, क्या क्या रिसोर्सेस देख सकते हैं, राइट। यार बहुत सारे रिसोर्स हैं, मैं बहुत सारी चीजें बता सकता हूं, राइट। कुछ कुछ रिसोर्सेज मैंने यहां पे रखा हुआ है। थिंक स्टैट्स करके एक बुक है, राइट। यदि आपको स्टैटिस्टिक्स सीखनी है, इफ यू वांट टू लर्न स्टैटिस्टिक्स, प्लीज गो अहेड विद दिस पर्टिकुलर बुक। स्टैट क्विस्ट करके एक यूट्यूब चैनल है, यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस, एंड देन खान एकेडमी में यू कैन ऑल्सो गो this, you can just go ahead and see in Khan Academy for understanding linear algebra, right। स्टैटिस्टिक्स के लिए ये बुक है, ये यूट्यूब चैनल है। दिस यूट्यूब चैनल इज बाय जोशुआ स्टामर, काफी अच्छी यूट्यूब चैनल है। देन खान एकेडमी, लीनियर अलजेब्रा पढ़ना हो तो वहां से पढ़ सकते हो। पाइथन के लिए क्या करेंगे, कॉरीसेफर की एक पाइथन यूट्यूब चैनल है, जस्ट गो अहेड। एक डेटा स्कूल करके है, राइट, वो भी देख लो। यहां पे पाइथन फॉर डेटा साइंस आप अच्छे से सीख पाओगे, यहां पे पाइथन कोर पाइथन अच्छे से सीख पाओगे, राइट राइट। देन उसके बाद मशीन लर्निंग के लिए, राइट, सो ये भी एक यूट्यूब है, यूट्यूब चैनल। डेटा स्कूल करके भी एक यूट्यूब चैनल है, राइट। यू कैन जस्ट गो अहेड एंड गूगल इट आउट, राइट। एंड्रयू नेक का स्पेशलाइजेशन, दिस बोथ फॉर एमएल एंड डीएल, यूट्यूब पे भी वीडियोस मिल जाएंगे, और कोर्सेरा पे आप स्कॉलरशिप अप्लाई करके यू कैन ऑल्सो गेट इट, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगेन डीप लर्निंग के यूट्यूब वीडियोस देखनी है तो आपको 3 ब्लू 1 ब्राउन ये वीडियोस आप देख सकते हो। दिस विल एक्चुअली गिव यू अ फीलिंग अबाउट द यूट्यूब, सॉरी, डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स, राइट। एनएलपी के साथ जाना है तो स्टैनफोर्ड की एक प्लेलिस्ट है, गूगल आउट कर लो, CS235 समथिंग लाइक दैट, वो आप कर सकते हो, राइट। बुक्स, यदि यूट्यूब मशीन लर्निंग डीप लर्निंग की बुक्स की बात करें हम, तो क्या पढ़ सकते हो आप, यदि आप बुक्स पढ़ना चाहते हो तो मर्फी की एक बुक है जो कि काफी कवर करती है डिटेल में, राइट। एक बीसप की बुक है, राइट, बीसप तो यूज्ड टू वर्क इन माइक्रोसॉफ्ट, एंड देन द बुक इज रिटन, दिस इज लाइक बाइबल्स। मर्फी की बुक है प्रोबेबिलिस्टिक मशीन लर्निंग मॉडल समथिंग लाइक दैट, एंड बीसप की मशीन लर्निंग, यू कैन गो थ्रू दिस बुक्स, right, just google it out, right, just google it out, right, these are the resources you can, right। अब क्या होता है कि ये रिसोर्सेज मैंने बता दिया, इसको आपको कवर करने में जो मैंने टाइमलाइन बताया, लेट से 6 से 8 महीने या 9 महीने, ये टाइमलाइन बढ़ करके 3 साल हो जाएंगे आपके। रीजन बीइंग वेरी सिंपल, बहुत बार पढ़ने का मन करेगा, बहुत बार पढ़ने का मन नहीं करेगा, फिर क्या करोगे आप, राइट, प्रोक्रास्टिनेशन होगी, राइट, समथिंग लाइक दैट। नाउ यहां पे आता है रोल करियर क्राफ्ट का। सो व्हाट इज करियर क्राफ्ट, राइट। सो ये एक तरह का टेक प्लेटफॉर्म है, राइट, जो कि हम लोग एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, एडवांस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट।
all of this content will be in a very sequential way, right? Where I will be teaching, right? You can go through the syllabus here, right? यहाँ पे देखोगे आप syllabus, right? ये आप देखो हर एक चीज हमने कवर किया हुआ है. Only leaving the last thing, that is Gen AI. Gen AI मैं कवर नहीं कर रहा हूं because if I cover Gen AI, then it is going to be very tough because it will take a lot of time, right? So यहाँ पे मैं सिर्फ Gen AI, Power BI और Excel, ये जो बेसिक पावर बीआई एंड एक्सेल, ये ऐप टाइप का चीजें होती है, और जेन एआई को छोड़ करके आई एम कवरिंग टिल एनएलपी, which includes everything, right? Specialization of NLP, right? Now you can go ahead with the syllabus, you can look after the syllabus, right? Now आप ये बोलोगे कि अजय, what is difference in your syllabus that you are providing, in the course you are providing, and in any other syllabus? So you can see that many of the people are enrolling live. You can say this enrollment signed up, something like that. But what is the difference? पहला डिफरेंस ये है कि यदि आप कोई भी ऑनलाइन पढ़ने जाओगे, वो एक तरह का स्कैम होता है. आई स्ट्रांगली बिलीव यू कैन जस्ट गो अहेड एंड सी माय ब्लॉग्स. मैंने यहाँ पे ब्लॉग्स लिखा हुआ है, राइट? यू कैन जस्ट गो अहेड, कैसे कैसे लोग बेवकूफ बनते हैं, राइट? और कोई भी कोर्स आप देखने जाओगे, राइट, इट विल कॉस्ट यू कम से कम नो 25,000 से ऊपर. अपग्रेड के 2.5-3 लाख रुपए मिल जाएंगे आपको, राइट? इफ यू गो अहेड विद अनदर other edtechs like great learning or learn by any other, you will realize that कम से कम 50-60 हजार रुपए तो दे ही दोगे, राइट? नाउ देन यू विल बी आस्किंग मी, राइट, करियर क्राफ्ट कितने में दे रहा है, राइट? राइट. So if you go ahead in career craft, enroll for rupees 4999. This is the price that you guys are getting this course for. But ये